Kumar Mishra teaching you the glimpses of the past. This very series of pictures written by S.D. Samant. S.D. Sawant. इसमें यह हनी ड्यू की कहानी चित्रों का संग्रह अतीत की झलकियों के नाम से लिखा गया है, जिसमें कुल 9 चित्र दिए गए हैं और उसके अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं. In the beginning, there is a fusion of heart-touching song sung by Melody Queen of India, Lata Mangeshkar, for the martyrs before the audience. Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, etc. She invokes to the audience, her countrymen, to let her countrymen feel the sacrifice of India's martyrs. कहते हैं पहले चित्र में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने शहीदों को याद करके बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण दर्शकों के सामने यह गीत गाया है. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. कुल 9 चित्र हैं और किस तरह से अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन का विस्तार किया था, इन सारे चित्रों को शासन के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश एस.डी. सावंत ने की है. दूसरे चित्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से 1700 से 1800 के बीच अपने सर्वोच्च हथियार के जरिए पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था. उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी शत्रुता का लाभ उठाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था. तीसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि अंग्रेजी शासन में 1765 से 1836 के बीच भारतीय धर्म गुरुओं ने किस तरह से अस्पृश्यता और बाल विवाह के विषय में अपना उपदेश दिया था. In the third picture, during the British rule 1765 to 1836, the religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. To them, all the misery in the world is due to women. It was considered anyone who crosses the sea loses its religion. In reality, Indians had lost self-respect. The British avoided them. In view of British rulers, the natives are unworthy of trust, incapable of honesty. But some Indians were flutterers, considering themselves honest. Being merchants, the British wanted quick profits. They imposed heavy taxes on farmers to abandon their fields. Britishers ruled India by divide and rule policy based on absurd practices, inherent social evils, untouchability. कहते हैं तीसरे चित्र में 1765 से 1836 के बीच भारतीय धर्म गुरुओं ने किस तरह से अस्पृश्यता और बाल विवाह को लोगों के बीच रखने का काम किया था और उनका कहना था इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो महिलाओं के कारण है. कोई भी समुद्र पार जाता था उसे अपने धर्म से वंचित किया जाता था. वास्तव में भारतीयों ने अपना गौरव गंवा दिया था और अंग्रेज उनसे बचना चाहते थे. अंग्रेजी शासकों के शब्दों में यह भारत के निवासी कहीं से भी विश्वास करने लायक नहीं थे. कुछ भारतीय जो चाटुकार थे वो अपने आप को ईमानदार कहते थे और व्यापारी अंग्रेज व्यापारी ज्यादा से ज्यादा टैक्स आयात करके अपना ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते थे. ब्रिटिश शासकों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और यहाँ के जो सामंत थे उनको चंद सिक्कों को देकर अपने लाभ में जिंदगी जीते थे. The East India Company's laws began to spoil Indian industries. The inevitable famines followed between 1822 and 1836 of starvation. The British policies ruined the export artisans and their business.
कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई ऐसे नियम बनाए जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। और 1822 से 1836 के बीच बहुत सारा ऐसा आपदा के क्षण हुए थे जिसके कारण लाखों की संख्या में भारतीय भूख से मारे गए। अंग्रेज नीतियों ने बुनकरों को बर्बाद कर दिया, है ना। चौथे पिक्चर में हमें राम मोहन राय की झलकी मिलती है। In the fourth picture, we have glimpses from the life of Ram Mohan Rai, 1772 to 1833. A learned man from Bengal, Ram Mohan Rai understood in fourth picture, we have glimpses from the life of Ram Mohan Rai, 1772 to 1833. A learned man from Bengal, Ram Mohan Rai understood the British policy and started the mission for free India. He advocated not to hate Indians. Their ancient culture was great. They were capable of greater achievements. He reformed the society from its social evils and practices. He banned sati practices. In his view, superstitions have been ruining Indians. In order to convince the goal of every religion, Ram Mohan Rai cited the example of different color gods. Despite differences in color, the color of milk religion is same. As different teachers have different opinions about religions. After आते हैं कि चौथे पार्ट में यह बताया गया कि किस तरह से राम मोहन राय जिनकी कालावधि 1772 से 1833 थी, वो बंगाल के एक विद्वान थे। राम मोहन राय ने यह नीति, अंग्रेजों की नीति समझने की कोशिश की और भारत की आज़ादी में अपना उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने भारतीयों से घृणा करने से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय अपने प्राचीन गौरव परंपरा को प्यार करें और अपने पूर्व के उपलब्धि को याद करें। उनमें बहुत अधिक शक्ति है, वो चाहें तो आगे भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय समाज को उसकी बुराइयों से मुक्ति दिलाने का काम किया। राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा की समाप्ति हो सकी। उनके विचार से समाज में व्याप्त अंधविश्वास के कारण ही अंग्रेज हम पर शासन कर सके, है ना। उन्होंने विभिन्न धर्मों के सार तत्व को उदाहरण स्वरूप बताया कि जिस तरह से गायें कई रंगों की होती हैं परंतु उनसे प्राप्त होने वाला दूध सफेद होता है, ठीक उसी तरह अलग अलग धर्म गुरुओं के द्वारा दी गई धर्म की शिक्षा का सार एक ही होता है। विचार का विस्तार के लिए राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर की छपाई शुरू की, लेकिन जैसे जैसे संदेह बढ़ता गया जिसके कारण 1823 ईस्वी में उन्होंने समाचार पत्र की छपाई बंद कर दी। आप भी हमें प्रजा चुनने, you accept, we accept you as rulers. You must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to the subjects. वो कहना चाहते थे कि जिस तरह से भारतीय कहना चाहते थे, जिस तरह से हम लोगों ने आपको शासक चुना है, आप भी हमें प्रजा सुनिए और प्रजा के शासक के द्वारा क्या जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। पांचवें चित्र में हम लोग देखते हैं अलग अलग अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को किस तरह से 1765 से 1835 ईस्वी में उनका शोषण किया जाता था। In 1818, the British passed Regulation 3 under it and in a court. Despite drawing big fly exporting British goods worth 7 crores rupees to India, due to the loot of East India Company, the British prospered while Indians industries began to die. Governor General Bentinck reported back to England. The plains, in his view, plains of India were being bleached by the bones of cotton weavers. 1865 से 1835 के बीच भारतीयों पर किस तरह से शोषण होता था, इसकी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने रेगुलेशन एक्ट 3 पास किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना उस पर मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। मानधन प्राप्त करते थे, लेकिन
व्यक्तिगत रूप से वो कई तरह के भ्रष्ट कार्यों में भी व्यस्त थे। इतना ही नहीं, भारत में दूसरे देशों नहीं था। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योग को बर्बाद करने का काम किया। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सामानों को इंग्लैंड से मंगाने पर कोई टैक्स नहीं की बात की। 1829 ईस्वी में 7 करोड़ अंग्रेजी सामान भारत मंगाए गए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लूट मचाई और भारतीय उद्योग धंधों को बर्बाद किया। गवर्नर जनरल को इंग्लैंड वापस किया गया और उन्हीं के शब्दों में मैदानी इलाके बुनकरों के हड्डी से भरे पड़े हैं। चैप्टर 4 We have not real depiction, we have real depiction of waves of dissatisfaction against British policies. Bitter sense of discontent started expanding in the contemporary society. Indians wanted to get rid of them. Before the colonial rule, Persian and Sanskrit was medium of education. In 1835, Lord Macaulay brought English language as the medium of education. It produced a new generation of intellectuals, appointing Indians as class. In order to improve economic conditions, the British cared a little. The British had conquered the whole India. Yet Indians lost their jobs and lands. Indian kings had become puppets. The British converted Indians and used them in their favor. One of them convinced them to get the British out of India. कहते हैं छठे चित्र में हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भारतीयों में असंतोष फैला। समाज में 19वीं शताब्दी में किस तरह से तीव्र गति से विरोध के स्वर मुखर होने लगे। भारतीयों ने किस तरह से अंग्रेजों से बदला लिया। कहते हैं अंग्रेजी शासन से पहले शिक्षा का माध्यम फारसी और संस्कृत भाषा होती थी, लेकिन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को स्टार्ट किया। उन्होंने एक बौद्धिक वर्ग, ईरानियों का एक बौद्धिक वर्ग तैयार किया जो हमेशा अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। कहते हैं कि भारतीयों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम को पढ़ाना शुरू किया, है ना। उन्होंने भारतीय अपने शिकायत को अंग्रेजों से रखते थे और भारतीय देते थे। लेकिन 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने लगभग 1856 ईस्वी तक होते होते लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। भारतीयों ने अपने अंग्रेजों के कठपुतली थे। भारतीय को अंग्रेज अपने पक्ष में करना चाहते थे। भारतीयों को उन्होंने किया था और भारतीय अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। His vivid presentation during 1855 to 1857, the adjutant of his regiment and was sentenced to death. कहते हैं कि 7वें चित्र में 1855 से 1857 के बीच अलग अलग रूपों में जो प्रथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि भारत में साम्यवाद के फैलाव किया गया, है ना, और जो बंदूक की गोलियां होती थी उसमें गायों और सुअर के चर्बी लगाए जाते थे। किसानों को बहुत अधिक लगान देना पड़ता था। बंगाल में संथाल अंग्रेजों की नीति से बहुत विक्षुब्ध थे क्योंकि उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने छीन ली थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने यूरोपीय लोगों की हत्याएं कर दी थी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। पूरा भारत असंतोष से गोरे अंग्रेज सैनिक ज्यादा पैसा प्राप्त करते थे और जल्दी उन्हें तरक्की भी सेना में मिलती थी। मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 20 मिनट को हेलो, गुड मॉर्निंग,
My dear students, in picture 8, we have vivid depiction of the first revolt and war against the British in 1857. It started violently and at Meerut. The revolt spread wider all over India. The spies marched to Delhi, raising terror. Bahadur Shah Zafar. Due to the British policy, many landlords lost their lands. They were bitter towards the colonial rule. Landlords supported sepoys in trying to end the British rule. कहते हैं 8वें चित्र में हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और वह तेजी से मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। यह सशस्त्र सैनिक विद्रोह था जो दिल्ली तक फैला और विद्रोहियों ने कहा कि हमारे बादशाह बहादुर शाह दीर्घायु हो, है ना। अंग्रेज नीतियों के कारण बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीन गंवा दी थी। In the last picture, the fight for freedom, many former rulers supported the revolt. Under the efficient leadership of Peshwa Nana Sahib, there was a wave of people ready to sacrifice their lives against the foreign rule. As the British had taken away the kingdom of Begum Hazrat Mahal, she was angered to fight for freedom at Lucknow. Maulvi Ahmadullah of Faridabad, Umar Singh, received a bullet in his wrist. Then he cut the hand and offered to Mother Ganga. कहते हैं अंतिम और 9वें चित्र में किस तरह से भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, इसका चित्र देखने को मिलता है। पहले के शासकों ने, है ना, पेशवा नाना साहब के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह बढ़ता गया, उसमें बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ लखनऊ में मोर्चा संभाला। मौलवी अहमदुल्लाह ने फरीदाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया और उन्होंने अपने लोगों को कहा, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करो। राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर मदरलैंड। अंग्रेज हमारे मातृभूमि को बर्बाद कर रहे हैं और भारतीय अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में देश के दूसरे भागों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठ खड़े हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी। इस तरह उत्तरी भारत में घनघोर लड़ाई लड़ी गई और बिहार में 80 वर्ष के बूढ़े कुंवर सिंह एक बार वो यात्रा कर रहे थे नाव से और ठीक उस समय में उन्हें हाथ में गोली लगी। बाद में उन्होंने उसी समय अपने हाथ को काटकर माता गंगा को समर्पित कर दिया था। इन दिस वे आई कंक्लूड दिस स्टोरी। स्टडी ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं यह जो कहानी है हनी ड्यू से ली गई ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट को आप अच्छी तरह पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर को करें। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक यू। थैंक यू।